CC is your CC on? Yes, Renu दीदी, it's on. uh, शिवांग, क्या आपका CC ऑन है? हाँ, ये चालू है. ओके. दीपिका दीदी, what was the last verb? The last verb was take. दीपिका दीदी, आखिरी क्रिया कौन सी थी? शिवांग, आखिरी क्रिया टेक थी. रोशनी, what was the last verb? The last verb for take. Sorry, come again. The last verb for take. Sorry, come again. Sorry. The last verb for take. Where is your Sorry. chapter? Come again, please. Deepika Didi, come again. Okay. Roshni, what was the first verb? What was the first? The first verb for take. Sorry, come again. Didi, you can change the candidate. Renuka Di, what was the first verb? Sorry, the last verb. Last verb. Yeah. Deepika, the last word was take. रेणुका दी, आखिरी वर्ब क्या था? दीपिका, आखिरी वर्ब टेक था. रोशनी, what was the last verb? The last verb was take. ओके. रोशनी, आखिरी वर्ब क्या था? आखिरी वर्ब टेक था. वर्ब शिवांग, थी. आखिरी वर्ब क्या थी? क्रिया वर्ब क्या थी? ओके, क्या थी. ओके मैम. Shivang, what was the last verb? The last verb was take. शिवांक लास्ट वर्ब क्या था? Sorry, शिवांक लास्ट वर्ब क्या थी? last verb take थी. Deepika Didi, and what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was what, where should I go? Sorry, The last interactive sentence was where should I go? Renu Didi, uh, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was, what should I do? दीदी, लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस क्या था? Last interactive sentence, what should I do था. रोशनी, what was last interactive sentence? Sorry, Renu ji. Come again. Roshni, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was what should I do? Sorry, come again, please. The last interactive sentence was what should I do? Roshni, last interactive sentence क्या था? Last interactive sentence what should I do था. Deepika ji, what was the last interactive sentence?
The last interactive sentence was, what should I do? Please complete the process, रोशनी दीदी. दीपिका जी, लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस क्या था? रोशनी, लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस व्हाट शुड आई डू था. शिवांग, Namrata दीदी is also here. who? Namrata दीदी. Okay. Shivang, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was, what should I do? शिवांग, आखिरी इंटरेक्टिव सेंटेंस क्या था? सॉरी, शिवांग, ये शब्द लास्ट सुधारना है दोस्तों आपको. पिछली बार भी किसी ने लास्ट का हिंदी आखिरी ही बोल दिया था. पिछला. हाँ. शिवांग, पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस क्या था? दीपिका दीदी, पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस व्हाट शुड आई डू था. रेनू दीदी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाट शुड आई डू? रेणुका The, दीदी. the Hindi meaning of what should I do is मैं क्या करूं. दीदी, व्हाट शुड आई डू का हिंदी मीनिंग क्या क्या है? What should I do का हिंदी मीनिंग है मैं क्या करूं. Deepika, what is the Hindi meaning of what should I do? The Hindi meaning of what should I do is मैं क्या करूं. दीपिका, what should I do का हिंदी मीनिंग क्या है? What should I do का हिंदी मीनिंग है मैं क्या करूं. रोशनी, what is the Hindi meaning of what should I do? The Hindi meaning of what should I do should be मैं क्या करूं. सॉरी. कम अगेन रोशनी, प्लीज. तुम कम अगेन बोलो, वो दीदी कम अगेन बोलेंगी तो सही हो जाएगा. दीपिका दीदी, कम अगेन. What should be the Hindi meaning of दीपिका, इस बार तुमने गलती कर दी ना बेटा. सर वो ठीक है, सॉरी. What is the Hindi meaning of what should I do? The Hindi meaning of what should I do मैं क्या करूं. एक शब्द छोड़ दिया रोशनी तुमने. दीपिका, कम अगेन स्लोली. Roshni, what is the Hindi meaning of what should I do? The Hindi meaning of what should I do is मैं क्या करूं. रोशनी, what should I do की हिंदी का हिंदी अर्थ क्या होगा? What should I do का हिंदी अर्थ मैं क्या करूं. दीपिका, इस बार तुम्हारा हिंदी गलत हो गया. है आएगा, होगा नहीं आएगा. कम अगेन प्लीज दीदी. ओके. रोशनी, what should I do का हिंदी अर्थ क्या है? What should I do का हिंदी अर्थ
मैं क्या करूं? शिवांक, what is the Hindi meaning of what should I do? The Hindi meaning of what should I do is मैं क्या करूं? शिवांक, what should I do का हिंदी मीनिंग क्या होगा? Sorry. शिवांक, what should I do का हिंदी मीनिंग क्या है? What should I do का हिंदी मीनिंग मैं क्या करूं है। रोशनी, तुम्हें अभी किसी से पूछना है ना? सर हो गया, शिवांक से पूछ लिया। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अभी अभी आपने जो इंटरेक्टिव सेंटेंस प्रयोग किया, उसी में एक और इतना बढ़िया अपन गेम खेलने जा रहे हैं। इन्वर्टेड क्वेश्चन कहलाते हैं कुछ, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज आप सीधे सीधे सेंटेंस में हाँ या ना का जवाब देना। अभी हाँ का ही जवाब दीजिएगा, ना का जवाब मत दीजिएगा। हम शिवांक से पूछना शुरू कर रहे हैं और सबको वर्ब बदलना पड़ेगी बच्चों। क्रिया सबको बदलना होगी। सबका मोबाइल हॉरिजेंटल है या नहीं है? नहीं है तो मोबाइल को हॉरिजेंटल कर लीजिए। शिवांक, should I start? Yes sir, you should start. क्या मैं शुरू करूं? हाँ सर, आप शुरू करिए। वेरी गुड। वर्ब चेंज करना है। दीपिका दीदी, should I swing झूला? दीपिका दीदी, Yes, शिवांक, you should swing झूला। दीपिका दीदी, क्या मैं झूला झूलूं? हाँ शिवांक, आप झूला झूलिए। रेणुका जी, शुड आई ड्राइव द कार? Yes, Deepika. You should drive the car. रेणुका जी, क्या मैं कार ड्राइव करूं? रोशनी, शुड आई ड्राइव द कार? Yes, you should I drive the car. Sorry. You should drive the car. रोशनी, क्या मैं Come again please, रोशनी दीदी। You should drive the car. यस Sorry. She's right. Yes, you should drive the car. She's right. लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो शिवांक तो तुम पूछ सकते हो। No? Okay. Roshni, now you can ask me. Renu Didi, complete the process. दीपिका है। रोशनी, क्या मैं कार ड्राइव करूं? हाँ दीपिका दीदी, आप कार ड्राइव करिए। शिवांक, शुड आई कॉल? ओके दीदी। बेटा रुको एक मिनट। चलो आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक नई चीज। पहले हम दीपिका से पूछेंगे। दीपिका, क्या आपको पता है क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं?
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओहो, now my voice is clear. Shivang, am I audible to you? Yes, sir, you are audible to me. Roshni, am I audible to you? Yes, sir. You are audible to me. दीपिका, तुम्हारे नेटवर्क के कारण तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा वो कुछ एड ऑन हो रहा है कुछ तो भी। You are mute, sir. व्यक्ति के नेटवर्क के कारण भी ऐसा होता है, ठीक है? इसलिए हमने चेक किया, शिवांग को सही आवाज आ रही है, रोशनी को सही आ रही है। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? हाँ, पता है क्रियाएं। चलो रोशनी तुम बताओ पहले, क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, पता है? रोशनी, आवाज आ रही मेरी? एम आई Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या आपको पता है? सर क्रिया सर 4 प्रकार की होती हैं। ओके, थैंक यू। अब तुम यही सवाल हिंदी में दीपिका से पूछो। दीपिका दीदी, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। ओके, अब दीपिका यही सवाल आप शिवांग से कीजिए। शिवांग, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। शिवांग, कौन कौन सी होती हैं? सकारात्मक क्रिया और नकारात्मक क्रिया। हाँ। ये जवाब गलत हो गया। अब आप लोग सुनिएगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सुना? रोशनी, बताओ क्रियाएं कौन कौन कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम बताओ। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छा, तुमने शिवांग का सुन लिया। दीपिका, तुमने सुना? यस सर, क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हें अब आवाज सही जा रही है ना? क्लियर हो गया होगा नेटवर्क। आवाज आ रही है, उसके साथ कुछ तो भी और ऐड ऑन हो रहा है बस। जब भी आप बोलते हैं, आप चुप होते हैं तो कुछ नहीं आता ऐसा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना स्थान थोड़ा सा बदलता हूँ। गिव मी ए मिनट। तब तक यही सवाल तुम एक बार शिवांग से करो और शिवांग रोशनी से। शिवांग, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। रोशनी दीदी, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। दीपिका दीदी, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। बच्चों, किसी को पता है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सर जिसमें अच्छे विचार आते हो। चलो दीपिका, तुम बताओ। नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं पता। चलो इससे पूछते हैं। बेटा शिवांग, तुम बताओ। और फॉरवर्ड सर। ओके, Come again, शिवांग। आई फॉरगॉट। शिवांग ने बोला मैं भूल गया। तो बच्चों, हम एक काम करें, इन दोनों की परिभाषा तुम लोग को लिखवा देते हैं, याद कर लेना, ठीक है? तो तुम लोग के पास रजिस्टर वगैरह है या रफ जो भी हो? तो लिखने के लिए तैयार हो? दीपिका, आर यू रेडी टू राइट? यस सर, आई एम।
बेटा पूरा उत्तर दिया करो। यस सर, आई एम रेडी टू राइट। अब यही सवाल तुम रोशनी से पूछो। रोशनी, आर यू रेडी टू राइट? यस दीपिका दीदी, आई एम रेडी टू राइट। दीपिका अपने रेडी का उच्चारण जरा सुधारो। हमारे साथ बोलो रेडी। 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 गुड। अब हु इज रेस्ट रोशनी? अभी तुमने शिवांग से नहीं पूछा, तुम पूछ लो शिवांग। शिवांग, यू आर रेडी टू राइट? बेटा प्रश्न पूछो, तुम उत्तर बता रही हो उसको। अरे सर, प्रश्न क्या था सर? मैं भूल गई। तो तुम दीपिका दीदी से एक सेंटेंस बोल दोगी तो वो दोहरा देंगी। दीपिका दीदी, कम अगेन। रोशनी, आर यू रेडी टू राइट? यस दीपिका दीदी, आई एम रेडी टू राइट। शिवांग, आर यू रेडी टू राइट? No, I am not ready to write. गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। हम बहुत उसमें पड़े हुए थे कि कहीं तुम भी हाँ ना भूल दो। थैंक यू शिवानी। बच्चों, जिस चीज की आप परिभाषा लिखने के लिए तैयार बैठ गए हैं पेन और कॉपी लेके, अगर उसके नाम में ही उसकी परिभाषा निहित है यानी मौजूद है, तो फिर उसको लिखवाना, उसको दो लोगों को ही लिखवाया जाता है। या तो बच्चों को बहुत छोटे होते हैं ताकि वो रट लें, या बेवकूफों को। रोशनी को देखो कितनी हंसी आई। थैंक यू रोशनी। ये जानबूझ के कुछ चीजें हम प्रयोग करते हैं जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट खिल जाए। थैंक यू। देखो दीपिका, सकर्मक क्रिया, अगर हम इस शब्द को लिखें बोर्ड पर तो ये साफ साफ अपनी परिभाषा बोलता है। सकर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का आना जरूरी हो। जैसे अपने शादी के जब कार्ड आते हैं बेटा रोशनी, दीपिका, तो उसमें सपरिवार लिखा रहता है ना, तो उसका क्या अर्थ हो जाता है? बेटा अनम्यूट करके दीपिका या तो तुम बता दो सभी को या आना रोशनी। परिवार के साथ। कम अगेन। सभी को आना है। पूरे दीपिका, परिवार के साथ। हाँ, परिवार सपरिवार यानी परिवार सहित आपको बुलाया जाता, सपरिवार आइए, परिवार सहित आइए। तो वैसे ही इस क्रिया का नाम है सकर्मक, यानी जिसके साथ कर्म का आना जरूरी है। और कर्म को अपन अपनी ग्रामर में इंग्लिश में क्या बोलते हैं रोशनी, याद है बेटा? नहीं याद तो कोई बात नहीं, दीपिका से पूछते हैं। दीपिका, ऑब्जेक्ट। थैंक यू दीपिका, तुम्हें याद हो गया। कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं या ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक के साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, और अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे बताओ रोशनी? अब तो ये कॉमन सेंस हो गया। सर, हेल्पिंग वर्ब को। चलो कोई बात नहीं, दीपिका से पूछते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट ऐड ना हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ ऐड ना हो। वेरी गुड, जिसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी ना हो। अब खाली इतना बता देना पर्याप्त नहीं है बच्चों, हम तुम्हें कुछ उदाहरण देते हैं जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे। जैसे गो क्रिया है रोशनी, ये अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म का आना जरूरी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग, वाक्य पूरा लग रहा है, तुम
हिंदी है मैं जा रहा हूँ। शिवांग तुम भी सेंटेंस को बोल दो, फिर किसी का नाम ले लो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। दीपिका दीदी। दीपिका दीदी। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। रोशनी। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शिवांग। शिवांग इज डन। चलो, उसने तो शुरू ही किया था, ठीक है। तो गो क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे बेटा तो भी सेंटेंस पूर्ण कंप्लीट दिखाई देगा। लेकिन हैव ऐसी क्रिया है जो हमने लिखवाई है, भले ही अभी दीपिका ने ना लिखी हो, रोशनी ने लिखी होगी अगर उपस्थित होगी। छुट्टियों से पहले ही अपन ने राइटिंग वर्क शुरू किया था और मुश्किल से 5-6 क्रियाएं ही दिखवाई। तो रोशनी, हैव के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। अगर हम हैव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो व्यक्ति पूछेगा का। जबलपुरिया भाषा में बोल रहे हैं का। जैसे हम शिवांग से बोल रहे हैं, देखो जानबूझ के, शिवांग आई एम हैविंग। क्या ले रहे हैं? तुम भी बिल्कुल उसी भाव में बोलते तो बड़ा अच्छा लगता, सबको हंसी आती। हम फिर से बोल रहे हैं, शिवांग आई एम हैविंग का। ठीक है ना। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा बेटा। हम ऑब्जेक्ट लगा के बता रहे हैं, फिर उसके बाद सब लोग बदल बदल के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हैव सकर्मक क्रिया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो हम एक ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, आई एम हैविंग डोसा। ऑब्जेक्ट लगा दिया, अब क्लियर हो गया, मैं डोसा खा रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट में मैंने तो डोसा रख दिया, अब आप सबको ऑब्जेक्ट बदल बदल के रखना होगा, लेकिन कोई खाने की चीज ही रखिएगा। शिवांग। आई एम हैविंग फुल्की, मैं फुल्की खा रहा हूँ। दीपिका दीदी। आई एम हैविंग डोसा, मैं डोसा खा रही हूँ। सॉरी यू गॉट 3D। सॉरी। शिवांग ने बोला दीपिका सॉरी यू गॉट 3D। सॉरी आपको मिलता है 3 का दंड। डोसा किसने रखा था रोशनी, बताओ बेटा। सर आपने। मैंने डोसा खाया था। ओके, सो देयर यू आर। अब आई ना तुम लाइन में, हियर यू आर, हियर आर यू। बेटा पहले तुमने सही बोला फिर गलत कर दिया दीपिका। हियर यू आर ले Yes. लीजिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वेरी नाइस, थैंक यू। आई एम हैविंग माई लंच। यस। रोशनी। कंप्लीट द नहीं, प्रोसेस। हाँ थैंक यू रोशनी, अगर तुम क्लास में होती तो एक टॉफी तुम्हारी पक्की तुरंत देते। मैं मेरा लंच कर रही हूँ। बिल्कुल। रोशनी। आई एम हैविंग समोसा, मैं समोसा खा रही हूँ। वेरी गुड। अब शिवांग इज ऑलरेडी डन। हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अभी हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया और तुम्हें याद है ना रोशनी, हैव का मतलब खाना लिखवाया है हमने। हाँ, अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं, इसका दूसरा अर्थ लेके शुरू कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्ट लगाते ही क्लियर हो जाएगा। हो सकता है लिखते समय रोशनी के दिमाग में या साक्षी के दिमाग में या दीपिका के दिमाग में या और जो लोग मौजूद थे उन लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर आप एक ही क्रिया के 3-3 मीनिंग दे रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी समझ में आ जाएगा। आई एम हैविंग पेप्सी, मैं पेप्सी पी रहा हूं, अपने आप उसका अर्थ पीना निकल ही जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट लगाया, पूरा वाक्य सकर्मक क्रिया है। और बेटा सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक बार मैं शिवांग को चेक कर लूं उसको याद है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा। शिवांग, डू यू रिमेम्बर बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम। सुनिएगा दोस्तों, और अपना सीसी ऑन नहीं तो कर लीजिएगा, उसमें लिखा है। सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं
ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और अकर्मक को क्या कहते हैं, तुम खुद को ही बता दो। intransitive verb. वेरी नाइस, intransitive verb, intransitive verb, intransitive verb। गूगल वर्ब की जगह वर्क ले रहा है, मतलब हमारे उच्चारण में कहीं ना कहीं खामी है। My pronunciation is not accurate, that's why Google is taking one word wrong. Actually, if we speak Hindi, Google gets confused and he takes some wrong words. But continuously, if I am speaking English, Google does not get confused and he types everything properly, as you are watching here. तो ये सब लिखना नहीं है, न रटना है। हम इतनी बार दोहराएंगे इन चीजों को कि आपको एकदम आत्मसात करवा देंगे। आत्मसात करने का मतलब होता है किसी चीज को दिलो दिमाग में एकदम से उतार लेना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं जरा दीपिका से पूछ, दीपिका मेरे जगह बदलने के बाद क्या ठीक क्लियर हो है गया? अभी सर? जी। वो शायद पंखा बहुत तेज चल रहा था उस रूम में, इसलिए शायद उसकी हमिंग आ रही होगी। थोड़ा सा मैं मोबाइल का एंगल चेंज कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल के ऊपर वाले हिस्से को उसको क्या कहते हैं यार शिवांग, जो वाईफाई का वो डिब्बा सा लगा होता है। दीपिका, रोशनी, जिसको भी पता हो बताओ। बोलते क्या सर? डोंगल? हाँ, डोंगल तो हम जानते हैं, लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं, डोंगल भी बोलते हैं। अभी मैं बच्चे से पूछूंगा। चलो, तो दूसरा राउंड हम फिर से शुरू करते हैं। मैं अपना सेंटेंस दोबारा बोलता हूँ। आई एम हैविंग पेप्सी, मैं पेप्सी पी रहा हूँ। शिवांग। I am having mineral water. मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ। गुड। दीपिका दीदी। I'm having लस्सी, मैं लस्सी पी रही हूँ। रोशनी? I am having tea. मैं चाय पी रही हूँ। तो दोस्तों, हैव का एक प्रयोग हमने खाने के लिए किया, दूसरा प्रयोग पीने के लिए किया, और तीसरा प्रयोग क्या किसी को याद है शिवांग को छोड़कर? क्योंकि शिवांग ने सर, तो जाना। नहीं बेटा, जाना तो गो है। दीपिका ने तो लिखा नहीं है, इसलिए उससे हम पूछे कि ना पूछे। चलो शिवांग ही बता दे। सर, लेना, लेना, गिफ्ट लेना। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। लेना। अब हम तीसरा प्रयोग करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको सचेत होके एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं। आई एम हैविंग द गाइडेंस ऑफ माई टीचर, मैं अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रहा हूँ। शिवांग, पहले इस सेंटेंस को सेम टू सेम बुलवा देते। सबसे पहले तुम बोलो, फिर दीपिका दीदी, फिर रोशनी दीदी। I am having guidance of द my गाइडेंस, teacher. The guidance of my teacher. मैं अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रहा हूँ। दीपिका दीदी। I am having the guidance of my teacher. मैं अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रही हूँ। रोशनी? I am having guidance of my teacher. मैं अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रही हूँ। रोशनी बेटा, तो हमारे साथ एक बार इस शब्द को, एक बार नहीं बेटा, 3 बार बोलो। जस्ट ए मिनट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? मॉडम, मॉडम, मॉडम। हमारे बेटे से ये पूछो, मॉडम। हमारे साथ रोशनी बेटा ये शब्द बोलो। गाइडेंस, 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 गाइडेंस,
गाइडेंस। गाइडेंस। अब अपना पूरा वो वाला सेंटेंस अच्छे से बोल। आई एम हैविंग द गाइडेंस ऑफ माई टीचर। मैं अपने शिक्षक का मार्गदर्शन ले रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आपको अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगाना है जिसमें अर्थ लेना निकलना चाहिए। हम शिवांग से शुरू करते हैं। शिवांग। आई एम हैविंग अ पेन। मैं पेन ले रहा हूँ। दीपिका दीदी। I am having the vegetable with my father. प्लीज कंप्लीट कंप्लीट द द प्रोसेस प्रोसेस। सुधी। मैं मेरे पापा के साथ सब्जियां ले रही हूँ। रोशनी। आई एम हैविंग अ टैबलेट। मैं दवाई ले रही हूँ। वेरी गुड रोशनी। एक राउंड हम और चलाते हैं इसमें। और इसमें कोशिश करना दीपिका रोशनी कि वस्तु न रख के कुछ और रखना, जैसे गाइडेंस। गाइडेंस वस्तु नहीं है ना बेटा, वैसी कुछ कोशिश करो। नहीं बने कोई बात नहीं, हमारा सेंटेंस सुनना। और शिवांग तुम भी ऐसे ही कोशिश करना, ठीक है। आई एम हैविंग वन मोर चांस। आई एम हैविंग वन मोर चांस। मैं एक और चांस ले रहा हूँ। आई एम हैविंग वन मोर स्कूल। मैं एक और स्कूल ले रहा हूँ। दीपिका दीदी। बेटा कम अगेन, आई कुड नॉट लिसन, योर वॉइस वाज चॉपिंग। आई एम हैविंग वन मोर स्कूल। मैं एक और स्कूल ले रहा हूँ। दीपिका दीदी। स्कूल। बेटा I could not get the last word. Come again, please, Shivang. I am having one more school. School. Yes, sir. नहीं बेटा, ये तो वो बोलेगा जो स्कूल खरीदने जा रहा है। पास। चलो तुम थोड़ी Okay. देर और विचार I करो, तब तक दीपिका दीदी। हाँ, I am having the grocery from the market. मैं नहीं किराना बेटा, ये खरीद रही वस्तु हूँ। नहीं ना, वस्तु नहीं रखने के लिए बोला है मैंने, वस्तु Okay. नहीं रखना। I am okay. Okay, sir. I am having one more plot at same area. लेकिन ये भी तो भौतिक चीज हो गई ना बेटा। Okay. हमारा सेंटेंस फिर से सुनो। मेरा पहला सेंटेंस था आई एम हैविंग द गाइडेंस ऑफ माय टीचर। अब गाइडेंस कोई वस्तु नहीं है, नहीं है ना। थोड़ा सा कठिन है बेटा, लेकिन सोचो, शिवांग से भी नहीं बना। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया, वो भी सुनो। चलो एक बार हम तुम से बुलवा देते हैं, ताकि कम से कम तुम्हारे मुंह से इतना तो निकले। दीपिका हमारे पास शिवांग बोलेगा, फिर दीपिका, फिर रोशनी। आई एम हैविंग वन मोर चांस। मैं एक और चांस ले रहा हूँ। शिवांग। I am having one more chance. मैं एक और चांस ले रहा हूँ। दीपिका दीदी। I am having one more chance. मैं एक और चांस ले रही हूँ। रोशनी। आई एम हैविंग वन मोर चांस। मैं एक और चांस ले रही हूँ। चलो अब इतने सेंटेंस तो तुम्हारे मुंह से निकल गए। तुम लोग को दीपिका मैं फिर से बताता हूँ, हमारा ब्रेन इस तरह से दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन।
लेफ्ट ब्रेन रचनात्मक होता है, जो पिछले 27 साल से हम लोगों को करवाया गया है, और बेटा राइट ब्रेन होता है रचनात्मक। तो हमारे राइट ब्रेन का कभी प्रयोग नहीं किया गया है, रचनात्मकता कभी नहीं की गई है। ये इतना पढ़ाया बेटा मैंने, तो मैं इतना रट के आना, नहीं तो घटना टेक करा देंगे, ऐसी धमकी देके हमें पढ़ाया गया। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। शिवांग को देखो, धीरे धीरे उसका हुआ है, तुम लोग का भी होगा। मैं एक सेंटेंस और बनाता हूँ, आई एम हैविंग रिस्क इन दिस बिजनेस। मैं इस व्यवसाय में रिस्क ले रहा हूँ। अब रिस्क कोई देखने वाली वस्तु नहीं है ना बेटा, जिसको हम देख सकते हैं, वस्तु है ही नहीं। रोशनी ने हाथ उठाया, देखते हैं क्या लेकर आती है रोशनी। आई एम हैविंग वन मोर ट्रैवलिंग। मैं एक बार और ट्रैवलिंग कर रही हूँ। बेटा पहले तो हमारे साथ 3 बार बोलो, ट्रैवलिंग, 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 ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। लेकिन बेटा ये गलत है। अब गलत एक है। सेकंड रुकिएगा दोस्तों, अभी नम्रता यहाँ पे मौजूद है सुनने के लिए, तबीयत नासाज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनका मैसेज दिखाने के लिए स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, और फिर आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई देगी, और मैं फिर आपको लेकर चलता हूँ जहां से आप मैसेज देख सकते हैं। स्क्रीन पे बेटा मैसेज 2-3 सेकंड के लिए आता है। हाँ, इतनी देर तक आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा जब तक हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। अब मैं उन 3 बिंदुओं को दबा रहा हूँ, रोशनी तुम भी देखना, दीपिका। 3 बिंदुओं को दबाया, और पहले नंबर पे लेफ्ट साइड में इन कॉल मैसेज आ गया, मैं वहां पहुंच गया। यहाँ देखिए नम्रता की तस्वीर बनी है, और उसने अपने एक सेंटेंस टाइप करके भेजा है, आई एम हैविंग डिस्करेज पीपल। बेटा नम्रता ये सटीक नहीं है, पीपल रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। अभी हम ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं जो कि आप लोगों को दिखा, वो मैसेज सबने देखा ना। नाउ आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। अब मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूं, और मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं। दीपिका उंगली उठा रही है, रेडी, यू आर म्यूट। हाँ, I थैंक यू। I am having revenge from my enemy. Very nice. Put your hands together for Deepika. Complete the process, Deepika. मैं अपने एनिमी से या दुश्मन से बदला ले रही हूँ। रोशनी, बिल्कुल सही। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा सुधार करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। दीपिका तुमने बिल्कुल वही किया जो आमतौर पे हम हिंदी मीडियम वाले करते हैं। तुमने ध्यान दिया, हम हिंदी मीडियम वाले, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, थ्रू आउट हिंदी मीडियम, इसलिए मैं आज इतना सफल हूँ। अगर मैं इंग्लिश मीडियम होता तो अनजान बच्चों की समस्या पर क्रोध आता मुझे, मैं सोच ही नहीं पाता कि वो इतनी कमजोर छोटी छोटी सी गलती कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो फटाफट फटाफट बोलते हैं, उनको लगता है वो तो बड़ा आसान है इंग्लिश सब कुछ। अब एक पिक्चर है जो शिवांग ने जरूर देखी होगी, और जो भी बच्चा 10 साल के आसपास है उसने जरूर देखी होगी, 10 साल या 10 साल से बड़ा। तो वो वहां से हम वर्ब लेके इसी सेंटेंस को बना रहे हैं। मैं बोलूंगा, फिर शिवांग, फिर दीपिका, फिर रोशनी, और नम्रता तुम बेटा टाइप करके भेज देना, और उस पिक्चर के नाम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुमने क्या किया दीपिका, बोला आई एम हैविंग रिवेंज, है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हैविंग का प्रयोग करना तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस और खूबसूरती से ऐसे बनाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, आई एम रिवेंजिंग, सॉरी आई एम अवेंजिंग। बेटा याद आ गया नाम पिक्चर का शिवांग, बताओ। एवेंजर। दीपिका को तो नहीं पता होगा, रोशनी को भी।
ये सारे बच्चों ने देखी होगी पिक्चर, अपने बेटे से पूछ लेना। एवेंजर्स, उसमें सब हीरो लोग रहते हैं, पावरफुल सुपर ह्यूमन। दीपिका, तुम किससे बात कर रही थी? सर मेरी डॉटर है। कितनी बड़ी है? डॉटर सामने आओ बेटा, तुमने एवेंजर देखी है क्या? यस सर। अरे वाह, तो तुमने मम्मा को बताया? नो। अरे किसके साथ देखी थी? मम्मा के साथ नहीं गई थी? इधर आओ ना, सामने आओ, हम देखे थे तुम्हें। हेलो। हेलो। अच्छी लगी ना? खूब मजा आया था एवेंजर्स। किसके यस साथ सर। गई थी? सर माय ब्रदर। अच्छा, वो ब्रदर इज एल्डर टू यू? नो सर। यंगर? छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा है। हाँ, तुम दोनों चले गए थे बस? नहीं, पापा के साथ। पापा के साथ? वही तो, थिएटर में देखी ना? थिएटर में गए थे, मतलब हम्म, मॉल में जाके? नहीं, मैंने मोबाइल पे अरे क्या हो गया दीपिका? कोई आ गया लगता। चलो ठीक है लड़का आ बच्चे। गया। कौन आ गया? माय ब्रदर। अच्छा, ओके, तो बोथ ऑफ यू गो। उससे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी के मन में कुछ अच्छा सा आया हो तो बनाए। आई एम हैविंग अ ड्राइव। हाँ, इसमें लॉन्ग और लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई एम हैविंग अ लॉन्ग ड्राइव। हाँ, मैं लॉन्ग ड्राइव ले रहा हूँ। वेरी नाइस। वन मोर। वन मोर सेंटेंस सो दैट। हाँ, और कोई नहीं बना रहा तो तुम ही बना दो। आई एम राइडिंग बाइक चला रहा हूँ। आई एम हैविंग अ राइड। हाँ, करेक्ट। मैं राइड ले रहा हूँ। करेक्ट। एक और सर, सेंटेंस। हाँ, आई एम हैविंग वन मोर रीड। मैं एक बार और पढ़ रही हूँ। नहीं बेटा, नम्रता ने अनम्यूट किया। नम्रता, Yes, sir. Sir, is worship can use there? पहले सेंटेंस बनाओ नम्रता। मेक द सेंटेंस। I am having worship in temple. नहीं बेटा, ये भी नहीं आ सकता। अब हम एक और छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं, सुनना। आई एम हैविंग फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर से फर्स्ट फ्लाइट ले रहा हूँ। शिवांग हाथ उठा रहा है। शिवांग इज रेजिंग द हैंड। यस शिवांग। आई एम हैविंग enjoyment of cricket. यस, एंजॉयमेंट जो है वो अभौतिक नाउन है। मैं क्रिकेट का लुत्फ ले रहा हूँ। हाँ, मैं क्रिकेट का, अरे वाह, उर्दू में बोला, क्या बात है। मैं क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे। मैं क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा हूँ। एक बड़ा फेमस सेंटेंस बोले तुम लोगों से, रोशनी और दीपिका से। चलो सबसे क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं, है ना? तुम चाहो तो यस में जवाब दे देना, चाहो तो नो में देना, जो मर्जी। बड़ा फेमस सेंटेंस है हमारे बीच में आजकल। दीपिका, आर यू हैविंग टेंशन?
नो सर। पूरा तो बोलो बेटा। रोशनी, आर यू हैविंग टेंशन? अरे तुम पहले पूरा तो बोलो। सॉरी कहा। और ओके ओके ओके, आई विल। ओके। नो सर, आई एम नॉट हैविंग टेंशन। क्या तुम टेंशन ले रही हो? नहीं सर, मैं कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ। नाउ आस्क टू रोशनी। रोशनी, आर यू हैविंग टेंशन? No, I am having no tension. बेटा ये गलत सॉरी। तरीका कर दिया तुमने। तुमने दीपिका को नहीं सुना? दीपिका तुम शिवांग से पूछ लो। शिवांग रोशनी से। शिवांग, आर यू हैविंग टेंशन? नो दीपिका दीदी, आई एम नॉट हैविंग टेंशन। शिवांग, क्या आप टेंशन ले रहे हैं? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा। रोशनी दीदी, आर यू हैविंग टेंशन? No, I am not having tension. वेरी गुड रोशनी। रोशनी दीदी, क्या आप टेंशन ले रही हैं? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही। दीपिका दीदी, आर यू हैविंग टेंशन? नो रोशनी, I'm not having tension. Come again, दीपिका दीदी। No रोशनी, I'm not having tension. दीपिका दीदी, क्या आप टेंशन ले रही हैं? नहीं रोशनी, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। अब should I ask one more question? Shivang, are you having stress? नो सर, आई एम नॉट हैविंग स्ट्रेस। क्या आप स्ट्रेस ले रहे हैं? नहीं सर, मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। दीपिका दीदी, आर यू हैविंग स्ट्रेस? No शिवांग, I'm not having stress. दीपिका दीदी, क्या आप स्ट्रेस ले रही हैं? नहीं शिवांग, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। रोशनी, आर यू हैविंग स्ट्रेस? No, I am not having stress. रोशनी, क्या आप स्ट्रेस ले रही हैं? नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही। शिवांग, आर यू हैविंग स्ट्रेस? नो, आई एम नॉट हैविंग स्ट्रेस। शिवांग, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हैं? नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। दीपिका और रोशनी, तुम लोग आगे से हमेशा शिवांग के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। तुम लोग जब बोलते हो बेटा तो ऐसा लगता है तुम लोग सेंटेंस बोल रहे हो, और तुम लोग अपनी जगह सही हो, अभी नया नया हो। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया, शिवांग ऐसा लगता है कि रियली ही इज टॉकिंग टू समबडी, है ना? लगता है कि हाँ बात कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि वो रट के बोल रहा है। तो आगे से धीरे धीरे ऐसी कोशिश करो। शिवांग करीब करीब 1 महीने हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में था, तो चीजें उसको समझ में आने लगी हैं, तो मैं भी आने लगेंगी चीजें। और अक्सर यही होता है दोस्तों कि क्लास जब समाप्त हो जाती है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द याद आते हैं। तो जो भी तुम्हें याद आए वो व्हाट्सएप में भेज देना, ये सुविधा है। तो 8 बज गए हैं, पता नहीं चला। तो हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।